start. Yes. Very good afternoon, boys and girls. Very good afternoon, boys and girls. Very good afternoon, boys and girls. आप लगा थोड़ा खाना खाए जैसा, ठीक है. अब कोई लाइट को छेड़ो मत बिल्कुल भी. So finally, we begin yet another session of CA Foundation Law, where we have started with the Indian Contract Act 1872. We have started with the Indian Contract Act 1872 so far. So far we have learned what is contract, the primary definition of contract. How many of you have still not prepared the definition book? Please raise your hand. Please raise your hand properly. Still not prepared the definition book. बॉयज में बाकी इन सब लोगों ने किया, तुम सभी लोगों ने कर लिए क्या? हाँ, गर्ल्स में से कौन कौन बाकी? जस्ट रेज योर हैंड्स. श्रेया, यू, इशिता, आपने बना लिया डेफिनेशन बुक? व्हाई डिडंट यू प्रिपेयर? हाँ, खाना बोलेगा? देखो, मजाक अपनी जगह पे, पढ़ाई का डिसिप्लिन अपनी जगह पे. बनो लेगा? अच्छा, यानी श्री गणेश लिख दिया उसके ऊपर. सिर्फ बुक बनाई क्या? हाँ, कैसे? तो बोल नाम लिख के रखा है उसके ऊपर. उसको बुक बनाना नहीं बोलते. देखो भाई, अल्टीमेटली तुम्हारी इच्छा, ये फाउंडेशन है. मैं कोई पीछे लगने वालों में से नहीं हूं. बनाना है बनाओ, लिखना है लिखो, करना है करो, नहीं करना है मत करो. अल्टीमेटली पास फेल तुम्हें होना है, मुझे थोड़ी होना है. ठीक है, चलिए. क्योंकि ये करियर का चॉइस तुमने किया है, बाद में जो रिजल्ट आएगा कंप्यूटर स्क्रीन पे वो तुम ही जिम्मेदार रहोगे, इतना याद रखो. ठीक है, चलिए. सो माय डियर फ्रेंड्स, सो फार इन द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 वी हैव डिस्कस्ड वेरियस एस्पेक्ट्स. जहां पे शुरुआत थी हमने की डेफिनेशन की. कॉन्ट्रैक्ट इज डिफाइंड इन सेक्शन 2H ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, व्हिच स्टेट्स कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ. फॉर अंडरस्टैंडिंग द वर्ड कॉन्ट्रैक्ट and understanding the enforceability of a contract, we understood the different definition. As we saw, promise when accepted becomes a proposal when accepted becomes a promise. Promise, set of promises forming consideration for each other becomes an agreement. Agreement enforceable by law, fulfilling all the essentials of valid contract are contract. Yes, so all contract are agreement. All contract are agreement, but all agreement are not contract. Only those agreement which are enforceable by law are contract. Then we saw what are the different types of contract on the basis of validity, on the basis of formation, and on the basis of performance. Yes or no? After that, we also understood the different essentials of valid contract as specifically mentioned in section number 10. Yes or no? Hi, na. Then also we saw the different other essentials which are not specifically expressed in section number 10 but are required to form a valid contract. And lastly, we started discussion on offer, types of offer, and essentials of offer. Now the next point of discussion here is essentials of valid offer. हमारी ऑफर का ये जो डिस्कशन है, इसी डिस्कशन को आगे लेकर चलते हैं. और अगला पॉइंट जो हमें अब डिस्कशन में देखना है, दैट इज essentials of valid offer. Yes, आप सभी लोगों ने, बाकियों ने बुक्स बनाई है. चलो वैष्णवी, मुझे बताओ व्हाट इज द डेफिनेशन फॉर ऑफर. हाँ, डिफाइंड इन विच सेक्शन? 2A. ओके, हाँ. व्हाट इज द डेफिनेशन? डेफिनेशन बुक बनाई क्या? सच में लिखे है उसमें डेफिनेशन? क्या है ऑफर का डेफिनेशन? फिर कब बनाई थी बुक? बुक कब बनाए? कल बनाए. कल सुबह, शाम, दोपहर? कब बनाए? दोपहर में बनाए. तो सोने से पहले पढ़े क्या? उठने के बाद पढ़े? फिर बुक किस लिए बनाई? बोलो मुंदरा जी, डेफिनेशन ऑफ ऑफर क्या था फिर? हाँ तो बता ना, तेरे हिसाब से समझो. चल ठीक है. हाँ, पब्लिक को समझाओ ना. ऐसा लोगों के पेपर में एक ऑफर दिया है पब्लिक को, इज ऑफर, you'll get full marks. हाँ, एग्जामिनर will straight away tear your paper. टुकड़े टुकड़े कर देगा तुम्हारे पेपर के. बोल भाले, what is offer?
अजित, विभूते, डायमा, when one person signifies to another his willingness to do or to abstain from doing with a view to obtain the assent of that other to such an act of subsistence, he is said to make a offer. How many times I have repeated this? Every day I have been repeating this. Still you don't remember the definition. So you yourself think how you are going to write in final examinations. अगर फाइनल एग्जामिनेशन आ जाए तो किस तरह से लिखोगे? There is no way out. You have to read. Constant reading will only make you proper or will make you perfect in law. Just making the book and keeping it is no point, Vaishnavi. You have got to read the book also. सोने से पहले उठने के बाद पढ़ना है तो पढ़ना ही है. डेली बेसिस पे पढ़ने के बाद चूक ही नहीं सकते. So, essentials of valid offer we are discussing. So when we are discussing essentials of valid offer, offer का definition हमने समझा है. What do you mean by offer? When one person signifies to another his willingness to do or to abstain from doing with a view to obtain the assent of that other to such an act or subsistence, he is said to make a proposal. अब इस डेफिनेशन को पूरा करने के लिए, एक ऑफर को पूरा करने के लिए कुछ इसेंशियल्स है. दैट इसेंशियल शुड बी प्रेजेंट, देन ओनली वी कैन से देयर इज अ वैलिड ऑफर. जिसमें पहला पॉइंट क्या है? ऑफर मस्ट बी कैपेबल ऑफ क्रिएटिंग अ लीगल रिलेशनशिप. अ इनकम्प्लीट ऑफर, ऑफर which is a statement or which is made with the intention so as not to obtain the assent of the other, do you think it will be a proper offer? A domestic offer or a social offer, can it give rise to a legal relationship? Can it give rise to a legal relationship? Can it give rise to a legal relationship? So, proposal or offer which are made in domestic agreements, which are made in social agreements, do not give rise to a legal relationship. So, all those offer and proposal in which legal relationship or intention to create legal relationship is missing are not considered as valid offer to form a contract. Are not considered as a valid offer to form a contract. Are you getting my point? Are you getting my point? Whatever your parents offer to you, or you offer to your parents, whatever Chaitanya Bhale offers to Katrina, Katrina offers to Bhale. Whatever Sakshi offers to her father offering to her, right? Vishnu to Rashmika, Rashmika to Vishnu. All these examples were such in which both the parties did not intend to create a legal relationship. So whatever offer and agreement was there in such kind of agreements where they were of nature of social or domestic, do you think they can form a valid contract? So the offer itself is not valid. The offer in itself is not valid. So offer can be valid only when the offer is made with the intention to create legal relationship. The party making the offer must intend to create legal relationship. Second point, offer must be certain, definite and not vague. Certain, definite and not vague. Like I said, I offer to sell my bike to Vishnu, but I am not clearly stating which bike I want to sell. Whether I want to sell my Activa I, whether I want to sell my Activa 3G, whether I want to sell my Aviator, yes or no. I am not clear as to which moped I want to sell. So is my offer clear? Is my offer clear? Is my offer certain? Is my offer definite? No. So can I say this can be a valid offer? No. Because if I say I want to sell my bike for 30,000, this offer can be accepted by Vishnu, and he said, okay, I want to buy your bike for 30,000, but later on it will create a confusion between both of us, because I might be thinking that I am selling my Activa I, and Vishnu might be thinking that he is buying my Aviator bike. Yes or no? Ha ya na? Right? So offer must be certain, definite and not vague. Next, offer must be communicated to the offering. Hope you remember the case study. What is the case law? लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्ता, राइट? हमारे एग्जाम्पल में गणेश बाल, गणेश एंड
Vishnu, right? Could Vishnu claim the reward? Could Vishnu claim the reward? No. Why he could not claim the reward? Because the offer was not communicated to him. Who can accept the offer? Who can accept the offer? Only to whom the offer is communicated. For acceptance of the offer, there is a prima facie condition that the offer must be communicated. Let's take one more example. Bale sends proposal to Katrina and he is very scared कि कटरीना को जाके कैसे बोलूं. उसे डर है कि कहीं कटरीना ने थप्पड़ मार दिया तो फिर इज्जत के कांकरे हो जाएंगे, इज्जत का पूरा भाजीपाला हो जाएगा. सो वो सोच में है कि किस तरह से कुछ तो आइडिया लगाऊं. तो फॉर आइडिया ही वेंट टू अजित दादा एंड सेड कि अजित दादा प्लीज हेल्प मी, गिव मी सम आइडिया, आई वांट टू मेक प्रपोजल टू कटरीना. सो ही सेड मेरे पास एक आइडिया है, अपने काम करते कबूतर पकड़ कर दिखाते हैं और उस कबूतर के पास चिट्ठी दे देते हैं और वो कबूतर को भेज देते हैं, राइट. फिर भाले ने एक चिट्ठी पे पूरा प्रपोजल लिख दिया और प्रपोजल लिखकर एक डिब्बी में बांधकर वो जो तावीज था वो कबूतर के गले में लटका दिया एंड कबूतर को छोड़ दिया और बोले दोनों भी कबूतर जा जा जा, कबूतर जा जा जा, कबूतर जा जा जा, कबूतर जा जा जा. पहले प्यार की पहली चिट्ठी, ओ पहले प्यार की पहली चिट्ठी कटरीना को दे आ, कबूतर जा जा जा, कबूतर जा जा जा. ऐसा शर्मा रहा. सो तेरे को बोलते डे याद आ रहे. हाँ अच्छा, बिगड़ो मत. हाँ, तो भाले ने कबूतर को भेज दिया, भालू ने कबूतर को भेज दिया और गाना गा दिया कबूतर जा जा जा. कबूतर चला तो गया लेकिन जाकर कटरीना की गैलरी में जाकर बैठ गया. अब कबूतर का काम था चिट्ठी जो है कटरीना तक पहुंचाना, लेकिन कबूतर को कबूतर आइन मिल गई वहां पर. तो वो सोचा आज प्रपोज डे, मैं मेरा बिजी हो जाता हूं, तो वो उसका बिजी हो गया. सो दैट पर्टिकुलर प्रपोजल और ऑफर, वो चिट्ठी जो कबूतर लेकर गया, जो ऑफर वो कबूतर लेकर गया, वो कभी कटरीना के पास कम्युनिकेट ही नहीं हुआ. डू यू थिंक देयर इज अ वैलिड ऑफर व्हिच इज मेड बाय भाले टू कटरीना? देयर कैन बी अ वैलिड ऑफर ओनली व्हेन द ऑफर इज कम्युनिकेटेड. अगर वो कबूतर चिट्ठी देता, अगर कटरीना चिट्ठी लेती, चिट्ठी पढ़ती, तब जाकर ऑफर का कम्युनिकेशन कंप्लीट होता. अगर ऑफर कम्युनिकेट ही नहीं हुआ, कैन वी कंसीडर इट एज वैलिड ऑफर? कैन वी कंसीडर इट एज वैलिड ऑफर? राइट. लेट्स से दूसरे तीसरे दिन हमारी कटरीना जो है वो तारे के साथ शादी कर रही है. चिट्ठी का जवाब, अब वो चिट्ठी का जो है जवाब का इंतजार कर रहा है भाले. चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहां तुम चले गए. ऐसे साइड साइड गाने गा रहा है. अचानक से टिंग टोंग पोस्टमैन आया, बोले चिट्ठी आई है. बोले क्या है, दिखा नहीं. फटाफट लिफाफा खोला करके देखे तो ओह, कटरीना वेट्स रितेश. और फिर चालू गया हमारा तारे. छन से जो टूटे कोई सपना, जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना लागे, कोई रहे ना अपना, जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना लागे रे. तब अर्जेंट में कटरीना को डायल करता बोलता, कटरीना तुमने ये तो सही नहीं किया, लेकिन मुझे एक बात बताओ, जब मैंने ऑफर पहले किया था, जब मैंने प्रपोजल पहले दिया, तो पहले मेरे ऑफर को, प्रपोजल को एक्सेप्ट करती, रिजेक्ट करती, कुछ तो जवाब देती. बिना कुछ बताए, बिना कुछ बोले ही मेरा दिल तोड़ दिया. दिल टोटे टोटे हो गया मेरा, दिल टोटे टोटे हो गया, दिल टोटे टोटे हो गया, दिल टोटे टोटे हो गया. ऐसे कैसे कर दिया? कटरीना बोली कौन सा ऑफर, कई का ऑफर, किस चीज का ऑफर, कौन सा प्रपोजल? मुझे तो कुछ ऑफर नहीं आया, मुझे तो कुछ प्रपोजल नहीं आया. अगर तुम पहले बोलते तो आई वुड हैव कंसीडर्ड, लेकिन तुमने तो कुछ ऑफर दिया नहीं, तुमने कुछ प्रपोजल दिया नहीं. वो रितेश आया, मुझे बोला चांद तारे, स्पेसशिप, एस्ट्रोशिप सब कुछ तोड़ के लाऊंगा तुम्हारे लिए. वो रितेश आया, वो बोला आई एम बेटर देन रितेश देशमुख, मैरी मी. तो मैंने बोला ठीक है चलो, रितेश देशमुख ही नहीं, रितेश तारे ही सही. तब प्रॉब्लम यह है,
और मैंने सुना है रितेश सरपंच भी बना है, तो बोले चलने दो। तो अब एक मिनट, अब यहां पर क्या हो रहा है, प्रॉब्लम क्या हो रही है, हमारा भाले बोल रहा है कि मैंने ऑफर या प्रपोजल दिया, उसका जवाब क्यों नहीं दिया, उसका एक्सेप्टेंस क्यों नहीं दिया। कैटरीना क्या बोलती है, मैं एक्सेप्टेंस दे दी थी, मैं तुम्हारे साथ शादी कर ली थी, लेकिन आपका जो प्रपोजल या ऑफर है ये मुझ तक पहुंचा ही नहीं। दैट मीन्स टू फॉर्म अ वैलिड ऑफर, द पर्सन टू whom the offer is made, it should be communicated to that person. अगर भाले का प्रपोजल कटरीना तक पहुंचा ही नहीं तो कटरीना एक्सेप्ट करेगी क्या, नहीं भाई। एक्सेप्टेंस तभी होगा जब प्रपोजल आएगा, तो प्रपोजल आया नहीं तो फिर एक्सेप्टेंस हुआ नहीं, तो नुकसान हमारे भाले का हो गया है। सो ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी, यस और नो। नेक्स्ट, ऑफर मस्ट बी मेड विथ व्यू टू ऑब्टेन द असेंट ऑफ दैट अदर पार्टी। लेट्स से ऊपर वाले एग्जांपल में एक और एग्जांपल देता हूं। गणेश वांट्स टू सेल हिज बाइक, थोड़ा सीरियस एग्जांपल। गणेश वांट्स टू सेल हिज बाइक टू विष्णु, ही रोट एन ऑफर टू सेल हिज बाइक टू विष्णु ओवर अ मेल। विष्णु नेवर रेड दैट मेल, विष्णु नेवर रेड दैट मेल, एंड नाउ गणेश इज एक्सपेक्टिंग कि उसे ऑफर जो है उसका एक्सेप्टेंस चाहिए। जब वो मेल खोलकर देखेगा नहीं, पढ़ेगा ही नहीं, विल द ऑफर बी कम्युनिकेटेड टू विष्णु? Will the offer be communicated to Vishnu? No, the offer will be communicated only when the mail will be read by Vishnu. So understand, in forming a valid offer, it is very much required that the offer must be communicated to the offeree. If the offer is not communicated to the offeree, it does not form a valid offer. If there is no offer, there is no promise. If there is no offer, there is no acceptance. If there is no acceptance, there is no promise. If there is no promise, there is no agreement. If there is no agreement, there is no contract. Are you getting my point? Yes. Next point, offer must be made with a view to obtain the assent of that other party. जैसे भाले बोला, Katrina, I desire to marry you. Does that show a clear intention that he wants to make a valid offer? No. He's just making a statement. He's not making an offer. He's just making a statement. I desire to marry Katrina. Are you getting my point? Right? जैसे Ganesh is making an offer to Vishnu. I guess I should sell my bike for rupees 20,000. Is he making a proper offer? No. He's just showing his desire. He's not showing his willingness. So offer can be only when there is willingness, right? Next, offer may be conditional. There are 2 points. Offer may be conditional, but acceptance can never be conditional. Are you getting my point? Offer can be conditional. Offer can be conditional, but acceptance can never be conditional. So Bhale went to Katrina, sat on his knee and gave a rose and said, Katrina, will you marry me? तो उसे पता था कि कैटरीना हाँ बोलेगी, क्योंकि वो सीए बन चुका है, बड़े कंपनी में काम कर रहा है, बड़ा उसका पैकेज है, राइट? भले कद छोटा है लेकिन पैकेज बड़ा है, तो उसे मालूम है सीए चैतन्य वाले हैं, मजे ही मजे है, फुल शॉपिंग है, तो उसे मालूम है कि कैटरीना हाँ बोलने वाली है. So he made a proposal to Katrina, will you marry me? And also he said, undoubtedly I am proposing you, but if you want to accept my offer, you also have to accept few of my conditions. बोले क्या? तो बोले मैंने रूमर सुने हैं कि तुम्हारे और सलमान खान के बीच में कुछ है, तो तुम मेरा ऑफर एक्सेप्ट करने के बाद कभी सलमान के साथ कोई पिक्चर नहीं करोगे, कभी सलमान के साथ कोई पिक्चर नहीं करोगे, राइट? और वो बोले कि शादी के बाद कपड़े तो मैं धो दूंगा लेकिन खाना तुम बनाओगे, कपड़े मैं धो दूंगा लेकिन खाना तुम बनाओगे, राइट? घर का 50% काम मैं कर लूंगा लेकिन घर का 50% काम तुम्हें करना पड़ेगा. फिर भले 50% काम के लिए आपको थोड़ा बहुत एक्टिंग का सैक्रिफाइस भी करना पड़ा तो ठीक है, लेकिन करना पड़ेगा. नाउ भाले इज मेकिंग अ ऑफर and this offer is also consisting some conditions. What is the first condition is put? That Katrina should not work with Salman Khan. Katrina जो है वो सलमान खान के साथ काम नहीं करनी चाहिए. दूसरी कंडीशन क्या बोल रहा है? 50-50. काम का, घर के काम का क्या है? 50-50. 50% घर का काम मैं करूंगा, 50% घर का काम तुम करोगे. भले ही फिर 50% काम करने के लिए आपको अगर फिल्म अपना कोई प्रोजेक्ट सैक्रिफाइस करना पड़े तो भी करना पड़ेगा, लेकिन 50-50 काम करना पड़ेगा. नाउ acceptance has to be given by Katrina. Understand, while accepting the offer, there can't be conditional. Acceptance always has to be unqualified.
एक्सेप्टेंस ऑलवेज हैज टू बी अनक्वालिफाइड। कटरीना अपने अलग से कंडीशन नहीं रख सकती। कटरीना को अगर अपने से कुछ कंडीशंस रखने हैं, शी अगेन हैज टू मेक अ ऑफर टू भाले। ऑफर कैन बी कंडीशनल बट एक्सेप्टेंस नेवर कैन बी कंडीशनल। अगर कटरीना को भाले की दोनों कंडीशंस मंजूर है तभी जाकर वो इस ऑफर का एक वैलिड एक्सेप्टेंस देंगे। सो इससे पॉइंट हमें ये समझ में आता है दैट ऑफर कैन बी कंडीशनल, यानी हम ऑफर को कुछ कंडीशंस के साथ रख सकते हैं। राइट, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? राइट, जैसे कि एक और एग्जांपल है, लेट्स से गणेश promises to sell his bike to Vishnu, but he says I will sell my bike to you provided अभी नेक्स्ट वीक के अंदर एक बाइक रेस चैंपियनशिप है, यू शुड विन दैट बाइक रेस चैंपियनशिप। क्या कंडीशन बोला है गणेश ने विष्णु को कि अगले हफ्ते बाइक रेस चैंपियनशिप है, अगर आप वो बाइक रेस चैंपियनशिप जीतोगे, अगर आप बाइक रेस चैंपियनशिप जीतोगे तो ही मैं मेरी बाइक तुम्हें 20,000 रुपए में बेचूंगा। सो फॉर एक्सेप्टिंग द ऑफरी has to fulfill this condition. That means Vishnu has to take part in that race. Vishnu has to win the race. Then he can accept the offer of buying Ganesh bike. Are you getting my point? Are you getting my point? Offer can be conditional, and if offer is conditional, the offeree before accepting the offer should fulfill those conditions. If the offeree does not fulfill those conditions, if Vishnu does not participate in race, if Vishnu loses in race, he cannot accept the offer which is made by Ganesh. Are you getting my point? Are you getting my point? Yes or no? Offer should not contain a term the non-compliance of which would lead to acceptance. Right? So let's say Bhale is making an offer to Katrina. He proposes and says, चिट्ठी लिखी उसने, एक बड़ी लंबी चौड़ी की चिट्ठी, और बड़ी लंबी चौड़ी चिट्ठी उन्होंने लिख दी है, और लिखने के बाद उन्होंने नीचे पूछा है कि जो तुम्हारा जवाब है जल्द से जल्द मुझे बता देना, अपना एक्सेप्टेंस रिजेक्शन जो कुछ भी है मुझे बोल देना। अगर तुम कुछ जवाब देते हो तो ठीक, अगर कुछ जवाब नहीं देते हो तो भी ठीक। अगर तुम जवाब देते हो तो जो भी जवाब रहेगा मैं एक्सेप्ट कर लूंगा, लेकिन ये चिट्ठी पढ़ने के बाद अगर तुम जवाब नहीं देती तो मैं यही मानूंगा कि तुम्हारी हाँ है, मैं यही मानूंगा कि तुम्हारी हाँ है। तो जो चिट्ठी थी प्रपोजल की वो भाले ने कटरीना तक पहुंचा दी। कटरीना ने देख लिया, लेकिन कटरीना ने अवॉइड किया क्योंकि कटरीना के दिल में अब रितेश था। कटरीना के दिल में अब रितेश था। तब भाले का प्रपोजल आ चुका है, वो प्रपोजल पढ़ लिया कटरीना ने, लिंबू टिम्बू है, लिंबू टिम्बू बोलकर इसको बाजू में कर दिया, और साइड में रितेश का प्रपोजल आया वो पढ़ लिया, और इमीडिएटली फोन पे बोला आ जाओ घोड़ी पे बैठ के, लेट्स मैरी। ओके, अब भाले ने अपने ऑफर में क्या लिखा था? भाले ने अपने ऑफर में क्या लिखा था कि भाई कटरीना मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं, आई विश टू मैरी यू, आई 7 समुद्र पार प्यार हूं, ऐसा वैसा बहुत कुछ लंबा चौड़ा लिख दिया, खून से चिट्ठी लिख रहा हूं, इसको ही मेरा प्यार समझ लेना। और फिर उसे नीचे लिख दिया 1 लीटर खून मेरा बह चुका है, तो प्लीज जल्दी जवाब दे देना। अगर तुम जवाब देती हो तो ठीक, अगर तुम जवाब देती हो तो ठीक, अगर नहीं भी जवाब दिए तो मैं यही समझूंगा कि तुम्हारी हाँ है। कटरीना ने तो अवॉइड किया, कटरीना ने बोला पागल है, कटरीना ने जवाब भी नहीं दिया। कटरीना ना कुछ जवाब बोली, ना हाँ बोली ना बोली। कटरीना ने रितेश को बोला गोली लेके आ जाओ। इधर 1 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, जवाब नहीं आया। भाले ने अज्यूम कर लिया क्या कि कटरीना की हाँ है, कि कटरीना की हाँ है। राइट, लेकिन भाले अपना फॉर्म में, गांव में, सब जगह पे कटरीना की मेरी शादी होने वाली है, लगेच कटआउट बैनर, कटरीना वहिनींच्या प्रभावती नगरीमध्ये हार्दिक स्वागत, गणेश, विष्णू, प्रेम, अंजरू आणि शिंदे। हाँ, कटरीना वहिनीचे प्रभावती नगरीत हार्दिक स्वागत। सब रेडी वेडी हो गया, सब हो गया,
अब भाले हमारा घोड़ी पे बैठ गया, सब दोस्त नागिन डांस कर रहे हैं, लोल पोल हो रहे हैं, ये जूली को नागिन बना के वहां नचा रहे हैं, सब मस्त डांस चल रहे हैं। अचानक से डीजे वाले बाबू गाना बजाते, तेरे को घोड़ी जून चढ़ाया भूतनी का वो भी नाच रहा है घोड़ी पे बैठे बैठे। यहां से रास्ते से आगे से जा रहे हैं, बस ये सामने से वो जो जिंतू रोड है वहां से भाले की पूरी बारात आ रही है। आधे क्लास वाले इधर है, आधे क्लास वाले भाले के साथ है, और पीछे वाले पीछे तारे के साथ है, राइट। इधर उड़ान पुल के ऊपर से भाले आ रहा है, सॉरी इधर उड़ान पुल के ऊपर से तारे आ रहा है और सामने से भाले आ रहा है, और भाले और तारे दोनों भी अपने बारात लेकर आ रहे हैं। और वो मंडप जो है वो एडीएसएम में लगा है। और फिर दोनों भी दूल्हे जो है, दोनों की बारातें टकरा दी और दोनों के दोनों वहां पे ग्राउंड पे चले जाते हैं। और जाने के बाद दोनों भी एक दूसरे की तरफ देखते हैं, वो उसको देख के शर्मा रहा है, ये इसको देख के शर्मा रहा है, दोनों को पता ही नहीं कहानी में क्या ट्विस्ट है। अच्छा, फिर थोड़ी देर बाद भाले बोलता तारे को, अरे तू ही तो क्या करते है? फिर तारे बोलता अरे मेरे तो ठीक है, तू यहाँ क्या कर रहा है? तो बोले मैं, अरे क्या मजाक कर रहा भाले, मैं घोड़ी पे बैठा हूँ, सहरा बांधा हूँ, ये एवढे सब नाच रहे, तो शादी कर रहा हूँ ना। अरे हाँ नाइस, हाँ कांग्रेट्स, मैं भी शादी करने के लिए आया हूँ। अरे 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 नाइस, हाँ अरे वो देख जूली कैसे नाच रही नागिन के जैसे। ओके नाइस कांग्रेट्स, ठीक है। अब दोनों ने एक दूसरे को कांग्रेचुलेशन दे दिया, सब कर लिया। अब फिर बोले सामने से कटरीना आई, दोनों भी एक साथ गाना गाने लगे। कब तक जवानी छुपाओगी रानी, कवारों को कितना सताओगी रानी, कभी तो किसी की दुल्हनिया बनोगी, मुझसे शादी करोगी। अब ऐसा बोल दिया। कटरीना सामने से आ रही है, दोनों भी मस्त रेडी हो रहे हैं। फिर जैसे जैसे कटरीना नजदीक नजदीक आने लगी, दोनों भी एक दूसरे की तरफ देखने लगे। जैसे और कटरीना नजदीक आने, दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे, दोनों कंफ्यूज हुए। और फिर वैसे ही कटरीना आई, उसने वरमाला जो है तारे के गले में डाल दी और चल हो गया। छन से जो टूटे कोई सपना, जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना लागे, कोई रहे न जब अपना, जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना लागे रे। तो अब तारे ने पूछा कटरीना को, तुमने ऐसा क्यों किया? मैंने तुमको ऑफर दिया, तुमने एक्सेप्टेंस दिया, हम दोनों के बीच में एग्रीमेंट हो गया, एग्रीमेंट के बाद कॉन्ट्रैक्ट हो गया। मैं येड़ों की बाजार लेके आया हूं, बारात लेकर आया हूं, वो देखो जूली लपेट लपेट के नाच रही है, वो जूली लपेट लपेट के नाच रही है, नागिन नागिन नाच रही है। कम ज्यादा को मैं भी भूतनी पे नाच लिया और तुमने मेरे दिल तोड़ दिया कटरीना। व्हाट इज दिस? हाँ, धोखा किया है तुमने मेरे साथ, धोखा। अच्छा नहीं किया, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार ने ही लूट लिया घर यार का। तू प्यारी है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है। 2 मिनट के लिए कंफ्यूज मत हो जाना कि लॉ की क्लास है अंताक्षरी के। कटरीना बोली मैंने एक्सेप्टेंस कब दिया? मैंने एक्सेप्टेंस कब, बड़ा अंताक्षरी से बाहर आओ, थोड़ा लॉ में आओ। तो मैंने एक्सेप्टेंस कब दिया? अरे मैंने चिट्ठी पे 1 लीटर खून की बोतल निकाल के लिख के दिया खून सी चिट्ठी पे, आई वॉन्ट टू मैरी यू, प्लीज टेल मी योर एक्सेप्टेंस एट अर्लीस्ट, एंड इफ यू डोंट गिव एन एक्सेप्टेंस, इफ यू डोंट रिप्लाई, आई विल अज्यूम दैट यू हैव एक्सेप्टेड माई ऑफर। यू डिडंट रिप्लाई, सो आई थॉट यू हैव एक्सेप्टेड माई ऑफर। तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारी हाँ है, ऐसे मैंने अज्यूम कर लिया। फिर कोर्ट में जाते हैं तीनों लोग, और तीनों लोग जाते हैं कोर्ट में। जज साहब क्या बोलते हैं? इसेंशियल्स ऑफ वैलिड ऑफर क्या कहता है? द ऑफर शुड नॉट कंटेन अ टर्म, द ऑफर शुड नॉट कंटेन अ टर्म नॉन कंप्लायंस ऑफ विच वुड लीड टू एक्सेप्टेंस। अपना एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट करो, नहीं करोगे तो मैं एक्सेप्टेंस मान लूंगा। डू यू थिंक इट विल बी अ वैलिड ऑफर? डू यू थिंक दिस कंडीशन पुट इन द ऑफर इज वैलिड एंड करेक्ट? क्या इसे हम सही ऑफर कहेंगे? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? समझ में आया पॉइंट? पॉइंट समझ में आया? चलो नेक्स्ट पॉइंट। ऑफर में भी स्पेसिफिक और ऑफर में भी जनरल, राइट?
Bhale wants to marry Katrina is a specific offer. Bhale ka Swayamvar, general offer. Are you getting my point? Specific offer means when it is made to a specific person. General offer is when it is made to public at large, right? And general offer can be accepted by any person having the knowledge of it. A person without having knowledge of the offer or general offer cannot accept the offer. Are we okay? Next. Offer is different from statement of intention, invitation to offer, more communication of information, prospectus and advertisement. Now, there is a different point of discussion जो थोड़ा सा ट्विस्टी है, that is invitation to offer. ओके, आप में से कितने लोग बड़े मेट्रो सिटीज में गए होंगे, औरंगाबाद, पुणे, मुंबई, या आप में से हर कोई मॉल में गया है? Has every one of you been to a mall? हाँ या ना? हाँ या ना? मॉल में गए हो, मॉल में घूमे हो, मॉल में जब अलग घूमते हो तो अलग अलग जो स्टोर्स होते हैं, वो स्टोर्स के बाहर कुछ ना कुछ ऑफर लगे रहते हैं. फ्लैट 50, फ्लैट 20, एंड ऑफ सीजन सेल, बाय 2 गेट 2 फ्री, बाय 3 गेट 3 4, ऐसा कुछ ना कुछ ऑफर उसके अंदर रहता है, राइट? हर जो ब्रांड है, स्टोर है, उसके बाहर कुछ ना कुछ ऑफर की एडवर्टाइजमेंट लगी होती है. हाँ या ना? हाँ या ना? वो देखकर हम स्टोर में चले जाते हैं. वो देखकर हम स्टोर में चले जाते हैं. नाउ whatever ad or whatever advertisement or whatever hoarding they put at outside their store in the mall, do you think it is an offer? Do you think it is an offer? Do you think it is an offer? Okay. By seeing that, by reading that, you get into the store. By seeing that, by reading that, you get into the store. Yes or no? Hi or na? So, can I consider that as acceptance of the offer? Can we consider it as acceptance of offer? Can we consider as acceptance of offer? Okay. Let's say हम घूम रहे हैं औरंगाबाद के प्रोजन में, और घूमते घूमते हम एडिडास के स्टोर के बाहर आते हैं. एडिडास के स्टोर के बाहर एक छोटा सा कटआउट लगा है, वहां पे लिखा है फ्लैट 50. क्या लिखा है? फ्लैट 50. और नीचे स्टार है, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई. वो स्टार बहुत छोटा होता है, टर्म्स एंड कंडीशंस भी इतना छोटा होता है कि कोई देख या पढ़ नहीं पाता. हम क्या देख रहे हैं? फ्लैट 50. फ्लैट 50 देखते ही हम अंदर जाते हैं. ठीक है, चलो हम किसको घुमाएंगे? चलो इशिता को घुमाएंगे. इशिता घूम रही है प्रोजन मॉल में, और घूमते घूमते एडिडास स्टोर के पास चले जाती है, और एडिडास स्टोर के पास बाहर होर्डिंग कटआउट लगा है फ्लैट 50%. फ्लैट 50% का एक कटआउट देखकर वो अंदर चले जाती है. सो फ्लैट 50% का जो कटआउट बाहर लगा है, डू यू थिंक इट्स अ ऑफर? उसे पढ़कर जब इशिता अंदर जा रही है, कैन यू से इट इज एन एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑफर? कैन यू से इट इज एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर? ओके. अब अंदर जाने के बाद अलग अलग शूज देख रही है. वो देखने के बाद, बहुत से शूज देखने के बाद उसे एक पेयर ऑफ शूज पसंद आता है, जो लेटेस्ट जो उनका लॉन्च है एडिडास का, वो उसे पसंद आता है. वो जैसे ही उसे पसंद आता है तो उसका प्राइस टैग वो चेक करती है, दैट इज 10,000 रुपीज. दैट इज 10,000 रुपीज. फ्लैट 50 के हिसाब से कितना हुआ? 5,000. फ्लैट 50 के हिसाब से कितना हुआ? 5,000. वो बिलिंग काउंटर पर जाती है, अपने शूज रखती है, और शूज रखते ही उसे कहती है कि भाई ये बिलिंग कर दो भैया. मैम पक्का बिल करना है? बोले हाँ ठीक है. ओके मैम, दिस इज योर बिल एंड द अमाउंट इन द बिल विच इज प्रिंटेड इज 10,000. द अमाउंट विच इज प्रिंटेड इन द बिल इज 10,000. सो बोलते एक मिनट भैया, आप शायद कुछ गलत कर रहे हो, शायद आपके कंप्यूटर में, सिस्टम में कुछ गलती है. तो बोले नहीं, क्यों, क्या हुआ? नहीं, बिल पे 10,000 है. बोले हाँ ये देखो प्राइस टैग 10,000 है इसके ऊपर. तो बोले नहीं, मैंने बाहर चेक किया था, बाहर फ्लैट 50% लिखा है. बाहर क्या लिखा है? फ्लैट 50%. तो उसके मुताबिक तो 5,000 रुपए डिस्काउंट बनता है. हाँ मैम, हमने बाहर जो है वो कटआउट रखा है जिसके ऊपर लिखा है फ्लैट 50%, जिसके ऊपर लिखा है फ्लैट 50%. बट दैट इज लिमिटेड टू द ओल्ड कलेक्शन. But that is limited to the old collection. This particular pair of shoes which you have choice is new arrival. Is a new arrival. Normally अब देखो, कभी भी ब्रांड स्टोर में आप जाओ, ऑफर देखने जाओ, ऑफर में जो पुराना स्टॉक होता है उसके ऊपर ही ऑफर होता है, न्यू अराइवल के ऊपर डिस्काउंट नहीं होता, राइट? तो वो बोलते हैं मैम जो आपने पेयर ऑफ शू पसंद किया है वो न्यू अराइवल है,
और इस न्यू अराइवल के ऊपर किसी भी तरह का डिस्काउंट नहीं है। तो इशिता गुस्से में आ गई। मैं सीए स्टूडेंट हूं, मैंने लॉ पढ़ा है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। दिनेश सर मेरे टीचर है, उन्होंने मुझे पढ़ाया था। whenever there is offer, an offer is accepted, it gives rise to an agreement enforceable by law becomes a contract. You have made an offer by putting that cutout. I saw that cutout, I read that cutout, so your offer is communicated to me, so your offer is accepted by me. I came and made choice of this particular pair of shoes, and now you are saying me there is no discount. I had already accepted your offer and acceptance. There was always an agreement between you and me that you had to sell these shoes, a pair of shoes for 50,000, for 5,000, that is after discounted price, and now you are saying these are pair of shoes for 10,000. I will take you to the court of law. कोर्ट में जाते हैं, कोर्ट में सारा जो पक्ष है वो सामने रखा जाता है। तो फिर जज किसके बेसिस पे सब जो कुछ भी इंसाफ करता है? ऑन द बेसिस ऑफ लॉ। यहां पर जज जो है इशिता को एक नई कंसेप्ट बताता है, वो है इनविटेशन टू ऑफर। देयर इज अ न्यू कंसेप्ट, इनविटेशन टू ऑफर। इनविटेशन टू ऑफर, जो कुछ भी एडवर्टाइजमेंट, कटआउट, स्कीम्स, जो कुछ भी हम मॉल में, स्टोर्स के बाहर देखते हैं, all of you are wrong, they are not offer, they all are invitation to offer, they all are invitation to offer। ये ऐसे जो कुछ भी एडवर्टाइजमेंट, फ्लेक्स वगैरह, जो कुछ भी स्कीम्स ये अपने अपने स्टोर के बाहर लगाते हैं, ये एक इनविटेशन टू ऑफर होता है। whenever any person accepts the invitation to offer, it does not give rise to a promise or agreement. See, एक बात हमको मालूम है, offer if accepted give rise to a promise. Offer when accepted gives rise to a promise. Set of promises forming consideration will become a agreement. Agreement if enforceable by law will become a contract. हाँ या ना? Yes or no? Yes or no? हाँ या ना? लेकिन इनविटेशन टू ऑफर का ऐसा नहीं होता। इफ अ पर्सन एक्सेप्ट्स द इनविटेशन टू ऑफर, इट डज नॉट गिव राइज टू अ प्रॉमिस। इट डज नॉट गिव राइज टू अ प्रॉमिस। इनविटेशन टू ऑफर, दैट मीन्स वट एवर फ्लैट 50% एड दे हैव पुट अप इज अ इनविटेशन टू ऑफर। ठीक है, आपने वो फ्लैट 50 पढ़ लिया, इशिता ने उसे एक्सेप्ट किया है। प्लीज बियर इन माइंड, इनविटेशन ऑफ ऑफर, इनविटेशन ऑफ ऑफर को अगर आप एक्सेप्ट करते हो, दैट डज नॉट गिव राइज टू ए प्रॉमिस। हमने देखा है, प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस। डिड आई से इनविटेशन टू ऑफर व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस? डिड आई से इनविटेशन टू ऑफर व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस? या फिर हमने डेफिनेशन में क्लियरली देखा है, ऑफर व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस। क्या है? ऑफर व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस। बट वॉट एवर फ्लैट 50% board which Ishita has seen and read and communicated is a invitation to offer, is a invitation to offer. Now whenever we talk about invitation to offer, that means whenever one person accepts the invitation to offer, he is accepting that he will come and he will make a offer himself. He will make a offer himself, and that person who is giving the invitation to offer later on will accept the offer which is made by you. नॉर्मली क्या होता है? जैसे गणेश विष्णु का हम एग्जांपल लिए, गणेश मेड अ ऑफर एंड विष्णु गिव द एक्सेप्टेंस। ऑफर एक्सेप्टेंस होते ही ये क्या हो गया? एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया। हाँ या ना? यस और नो? अब देखो, फ्लैट 50 जो है, फ्लैट 50% का ये जो एड है, ये जो फ्लेक्स है,
It is a invitation to offer. It is a invitation to offer. Now this invitation to offer is accepted by Ishita. Is accepted by Ishita. इशिता ने इनविटेशन टू ऑफर एक्सेप्ट किया. इसका मतलब जो इनविटेशन स्टोर में आने के लिए स्टोर कीपर दे रहा है वो इनविटेशन उसने एक्सेप्ट किया है. और ये इनविटेशन किस चीज का है? इनविटेशन टू ऑफर. बस दिस इज ऑफ इनविटेशन टू ऑफर. यानी ये इनविटेशन एक्सेप्ट करने के बाद, ये निमंत्रण एक्सेप्ट करने के बाद वो अंदर स्टोर में जाएगी, उसे जो शूज पसंद आता है वो शूज पसंद करेगी, और वो शूज पसंद करने के बाद whatever pair of shoes she wants to buy, she will again make a offer. She will make an offer. Who will make an offer? Ishita will make an offer to the storekeeper that I want to buy this specific pair of shoes. Does her choice automatically say or is considered as acceptance? No. So whatever pair of shoes Ishita has made a choice and she is brought to the billing counter shows the offer which is made by Ishita. Ishita is offering to buy those pair of shoes. अब मुझे बोलो ऑफर बिना एक्सेप्टेंस, ऑफर बिना एक्सेप्टेंस, कैन इट बी एन अग्रीमेंट और अ कॉन्ट्रैक्ट? कैन इट बी एन अग्रीमेंट और अ कॉन्ट्रैक्ट? कैन इट बी एन अग्रीमेंट और अ कॉन्ट्रैक्ट? नो. दिस ऑफर हैज टू बी एक्सेप्टेड. हु हैज टू एक्सेप्ट दिस ऑफर? द स्टोर मैनेजर और द स्टोर कीपर, राइट? The storekeeper or the store owner has to accept. Did you accept offer? जहां पे वो बोले कि ये शूज मैं 5,000 रुपए में लेना चाहती हूं, वो क्या बोला? नहीं. इस शूज के कितने लगेंगे आपको? 10,000 रुपए. कितने लगेंगे? 10,000 रुपए. क्योंकि ये क्या है? न्यू कलेक्शन है. क्योंकि ये क्या है? न्यू कलेक्शन है. और उन्होंने बोल दिया कि अगर आपको 50% डिस्काउंट वाले चाहिए तो ये वाले शूज ले लेना, ये जो ये वाले रैक में है. तो अगेन दैट स्टोर कीपर इज मेकिंग ऑफर कि ये शूज जो है स्पेसिफिकली शोइंग, अब वो स्पेसिफिकली बता रहा है सिर्फ यही शूज जो है इसके ऊपर 50% डिस्काउंट है. यानी वो सीधा सीधा ऑफर कर रहा है कि यही है. अब उसमें से अगर कोई इशिता चॉइस करती है तो वो ऑफर का एक्सेप्टेंस होगा, फिर अग्रीमेंट होगा. समझ में आ रहा है क्या? थोड़ा ऑफर अलग है, इन्विटेशन टू ऑफर. इन्विटेशन टू ऑफर यानी जो कुछ भी फ्लैट 50% का जो एड लगा है एडिडास के शोरूम के बाहर, वो एक इन्विटेशन है. किस चीज का इन्विटेशन? कि आप आइए और आकर ऑफर करिए कि आपको क्या खरीदना है. इशिता ने वो देखा, वो पढ़ा, वो पढ़कर ये इन्विटेशन एक्सेप्ट किया. ऑफर एक्सेप्ट किया क्या? नहीं. ऑफर एक्सेप्ट किया क्या? नहीं. वो एड देखकर, वो फ्लैट 50 देखकर इन्विटेशन एक्सेप्ट किया. इन्विटेशन एक्सेप्ट करने के बाद जो पेयर ऑफ शूज उसे पसंद आए, she offered to buy those shoes. She offered to buy those shoes, and after she offered, if the storekeeper is okay with things, he will accept, he will do the billing, he will accept cash, and then that shoes will be given to Ishita. Then there will be an agreement. नॉर्मल केस में क्या होता है? ऑफर होता है, ऑफर का एक्सेप्टेंस होता है, इमीडिएटली अग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है. लेकिन इन्विटेशन टू ऑफर में, इन्विटेशन टू ऑफर में पहले हम इन्विटेशन टू ऑफर एक्सेप्ट करते हैं. जो व्यक्ति इन्विटेशन टू ऑफर एक्सेप्ट करता है वो फिर से एक्सेप्टेंस देने के बाद फिर से एक ऑफर करेगा, और फिर बाद में जो ओरिजिनल व्यक्ति जो इन्विटेशन टू ऑफर कर रहा है वो एक्सेप्टेंस देने के बाद फिर अग्रीमेंट बनता है. नॉर्मल से केस में कैसा है? ऑफर, एक्सेप्टेंस एंड देन बिकम एन अग्रीमेंट. अग्री, ये तो सबको मालूम है, राइट? अब इन्विटेशन टू ऑफर में क्या है? इन्विटेशन टू ऑफर, फर्स्ट दिस इज एक्सेप्टेड. आफ्टर दिस एक्सेप्टेड, जो पर्सन एक्सेप्ट करता है, हमारा कौन एक्सेप्ट कर रहा है? इशिता. जो पर्सन एक्सेप्ट करता है इन्विटेशन टू ऑफर हैज टू कम एंड मेक अ ऑफर, हैज टू कम एंड मेक अ ऑफर, एंड वॉट एवर ऑफर इज मेड बाय इशिता हैज टू बी एक्सेप्टेड, हैज टू बी accepted by whom? By the person who is making invitation to offer. By the person who is making invitation to offer. By the person who is making invitation to offer. After he accepts, then it will be an agreement, and then there will be a contract. Are you getting my point? चलो एक और एग्जांपल देता हूं इन्विटेशन टू ऑफर का. जैसे स्वयंवर का आपको याद है, स्वयंवर का ऑफर हर कोई एक्सेप्ट कर सकता है,
लेकिन स्वयंवर का जो एड उसकी मम्मी ने न्यूज़पेपर में डाला था, इट इज अ इनविटेशन टू ऑफर। इनविटेशन टू ऑफर, ये इनविटेशन को एक्सेप्ट करके मलिका, कटरीना, आलिया, क्यारा, सारा, सोनिया, व्हाटएवर, सब लोग जो है, जूली, सब लोग आ सकते हैं, सब लोग आ सकते हैं। एवरीवन कैन एक्सेप्ट द इनविटेशन टू ऑफर विच इज ऑफ भाले का स्वयंवर। हर कोई आ सकता है, लेकिन स्वयंवर का रिवाज क्या है? अल्टीमेटली जिसको शादी करना है वो सेलेक्ट करेगा कि उसे किससे शादी करनी है, वो सेलेक्ट करेगा उसे किससे शादी करनी है। लेट से भाले ने उसके दिल के हिसाब से, हमेशा उसके दिल में कटरीना थी, और जाकर कटरीना के गले में वरमाला जो है वो डाल दिया, और जो फूलों की माला जी थी वो कटरीना के गले में जाकर डाल दिया। बाकी सब गर्म हो गई, आलिया चिल्लाने लगी, एक ठोकू के अगर को दे दो, गुलू गुलू कर रहा है। सब लोग आके वहां पे दूसरे हीरोइन झगड़े कर रहे हैं, एक दूसरे को बुक्की मार रहे, फाइट मार रहे, बोले ऐसे कैसे। अब मेरी बात समझो, यस प्लीज। नाउ एवरी अदर हीरोइन इज नाउ फाइटिंग फॉर भाले। जस्ट इमेजिन, भाले बीच में कटरीना को डाल रहे, बाकी सब मेरा भाले, सब मारा मारी कर रहे। कटरीना, मलिका, आलिया, सारा, सब मारा मारी कर रहे, सोनिया, जूली, सब मारा मारी कर रहे हैं। एक सेकंड, अब मुझे बोलो, सबसे पहले तो मेरे सवाल का जवाब दो, क्या भाले सबका हो सकता है? क्या भाले सबका हो सकता है? क्या भाले सबका हो सकता है? भाले तो किसी एक का ही होगा, वो है कटरीना। तो बाकी लोगों का होगा क्या? नहीं। अब बाकी सब के सब क्या बोल रहे? चलो कोर्ट में लेके चलो, इसको कोर्ट में लेके गए, जज के पास, बोले जज साहब, इनके मम्मी ने एडवर्टाइजमेंट डाला था, मेरा बेटा है सीए चैतन्य भाले, बहुत बड़ा पैकेज है, क्लब छोटा है लेकिन पैकेज बड़ा है। सो बोले छोटा पैकेज बड़ा धमाका। सो whosoever wants to marry, हमारे भाले का स्वयंवर है, आ जाइए। हम हमारा करियर दाव लगाकर सब छोड़ छुड़ाकर भाले के लिए आए। मैं आई, ऐसा कोई बोल रहा, आलिया, मैं आई, फिर सारा आई, फिर बाद में जूली आई, सोनिया आई, मल्लिका आई, हाँ कौन, रानू मंडल आई, रश्मिका आई, सब जन आई, हम सब आए। यस यस प्लीज, हम सब लोग आए, लेकिन ये भाले कटरीना के गले में वरमाला डाल दिया। वी ऑल हैव एक्सेप्टेड द ऑफर, हम सबको थोड़ा थोड़ा भाले दे दो। अब मेरी बात समझो, अब जज साहब बोलेंगे अब तुम 7 लोग हो, तो एक काम करो भाले जी, 7 फेरे हैं, तो हर एक के साथ एक एक फेरा ले लो, चलेगा क्या? चलेगा क्या? चलेगा क्या? जज क्या बोलेंगे? अब उनका बोलना क्या है? सुनो मेरी बात, उनका बोलना क्या है? उनका बोलना है कि मम्मी ने ऐड डाला था, तो मम्मी ने ऑफर किया था, ऑफर हमने एक्सेप्ट कर लिया। आलिया चीख चीख के बोल रही, भाले मेरा है, भाले मेरा है, भाले मेरा है, और किसी का नहीं हो सकता। और मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती कि कटरीना से भाले की शादी हो। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ऑफर था इसके मम्मी का न्यूज़पेपर में, वो मैंने एक्सेप्ट किया है। यस, छोड़ो मजाक छोड़ो रे। ऑफर था इसके मम्मी का न्यूज़पेपर में, मैंने एक्सेप्ट किया है। ऑफर इज बीइंग एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेंस बिकम्स एन अग्रीमेंट, अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ, इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट। एंड हाउ कैन यू ब्रेक ए कॉन्ट्रैक्ट? नो, ही कांट ब्रेक द कॉन्ट्रैक्ट। दैट सब बोले होल्ड ऑन, whatever advertisement is made, whatever advertisement is made or given in the newspaper is not a offer, it's a invitation to offer. वो जितने भी हीरोइन उस इनविटेशन टू ऑफर को, उस स्वयंवर की एड को पढ़ रहे हैं और पढ़ के एक्सेप्ट करके खुद वहां पे प्रेजेंट रहेंगे, दैट मीन्स दे आर एक्सेप्टिंग द इनविटेशन टू ऑफर एंड ऑफरिंग देमसेल्फ टू मैरी भाले। देन भाले विल एक्सेप्ट एंड डिसाइड कि उसको किसके साथ शादी करना है। अब क्लियरली समझ में आ रहा है क्या? अब क्लियरली समझ में आ रहा है क्या? हाँ,
सीधे एग्जाम्पल कहां समझते हैं, अपने को उल्टे समझाना पड़ता है। हर कोई जो वो न्यूज ऐड पढ़ता है, ऐसे तो हर किसी के साथ शादी अपना भाले नहीं कर सकता। कर सकता है क्या भाई? नहीं कर सकता, नहीं कर सकता ना। तो अब बात ऐसा है कि सब हीरोइन का बोलना है कि ऑफर था, हमने एक्सेप्ट कर लिया, अग्रीमेंट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, अब हम सबको मुआवजा चाहिए। लेकिन कोर्ट क्या बोलती है? वो जो स्वयंवर की जो एड थी वो क्या थे बेटा? इन्विटेशन टू ऑफर। इन्विटेशन टू ऑफर को आपने एक्सेप्ट किया। आपने ऑफर को एक्सेप्ट किया क्या? नहीं। आपने किसको एक्सेप्ट किया है? इन्विटेशन टू ऑफर। इन्विटेशन टू ऑफर को एक्सेप्ट करने के बाद जब आप स्वयंवर में मौजूद थी, दैट मीन्स यू आर मेकिंग एन ऑफर वेयर यू वांटेड टू मैरी भाले। अब इसका एक्सेप्टेंस किसने देना होगा? भाले ने। भाले ने एक्सेप्टेंस किसे दिया? कैटरीना को। तो कैटरीना को एक्सेप्टेंस दिया तो कैटरीना के साथ एग्रीमेंट हो गया, कैटरीना के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो गया। आप में से किसी और को एक्सेप्टेंस नहीं दिया, आप में से किसी और के गले में वरमाला नहीं पहना है, इसका मतलब आप में से किसी को भी एक्सेप्टेंस नहीं दिया। आपका ऑफर एक्सेप्ट नहीं हुआ तो आपके और भाले के बीच में किसी तरह का एग्रीमेंट नहीं होता है, और किसी तरह का एग्रीमेंट नहीं हुआ तो किसी तरह का कॉन्ट्रैक्ट की कोई गुंजाइश नहीं है। फिर भाले एंड कैटरीना लिव्ड हैप्पीली देयर आफ्टर। समझ में आया? समझ में आया इन्विटेशन टू ऑफर में? एक और एग्जांपल बताऊं ऑक्शन का। ऑक्शन सेल पता है आपको? ऑक्शन सेल मालूम है? नीलामी, नीलामी यानी ऑक्शन सेल, राइट? लेट्स से देयर इज एन ऑक्शन सेल, देयर इज अ ऑक्शन सेल वेयर आई हैव प्रिंटेड एडवर्टाइजमेंट कि मुझे मेरी BMW बाइक बेचनी है, और ये BMW बाइक जो मुझे बेचनी है इसके लिए मैंने एक ऑक्शन रखा है, इसके लिए मैंने एक ऑक्शन रखा है, और उस ऑक्शन में जो जो खरीदार मेरी बाइक खरीदने में इंटरेस्टेड है सभी लोग आ सकते हैं। लेट्स से दिस इज द ऑक्शन, यहाँ पे वो बाइक लगाई वाली है मेरी BMW, और आप सभी लोग वो जो मेरी एडवर्टाइजमेंट थी, सुनो मेरी बात, आप सभी लोग जो मेरी एडवर्टाइजमेंट थी वो एडवर्टाइजमेंट देखकर यहां पर आए हो, एंड यू ऑल आर इंटरेस्टेड इन बाइंग दैट बाइक। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन, एडवर्टाइजमेंट of auction sale of my bike, is it a offer or is it a invitation to offer? अब इस invitation to offer को एक्सेप्ट करने के बाद आप सभी लोग यहां पर आए हो। Now you have accepted invitation to offer. Have you accepted offer? Have you accepted the offer? Did I make an offer? I made a invitation to offer. All of you have come here आफ्टर एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन टू ऑफर। आप सब लोग यहां पर आए, ऑक्शन शुरू हो गया। ऑक्शन शुरू होते ही मैंने कहा ये मेरी गाड़ी है, BMW की है, एक ही है, नंबर भी अच्छा है, आपको पसंद आएगी, उसकी स्पीड ऐसे है, सब मैंने स्पेसिफिकेशन बाइक के बारे में बता दिए। अभी एक ही महीना हुआ लेकर, लेकिन मैं गरीब आदमी हूं, थोड़ा सा भी कर्जे में डूबा हूं, तो मुझे बाइक बेचना है, तो इसके हिसाब से प्लीज बोली लगाइए। हर कोई अपने अपने हिसाब से बोली लगाने लगा, हर कोई अपने अपने हिसाब से बोली लगाने लगा। दो चार जन एग्जाम्पल दे दो, चलो भाई तुम बोली लगाओ, दाइमा जी कुछ भी बोली लगाओ। हाँ बोले बोले, हाँ 1 लाख, हाँ तुम्हारा कितना? 1,10,000, हाँ यस बोली बोली, 1,20,000, हाँ 1,30,000, हाँ बोली लगाओ। 1,50,000, 2 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, 1 करोड़, 5 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़, अरे करो 2,000 करोड़, 5,000 करोड़, 10,000 करोड़, हाँ 1, हाँ ओके, अच्छा चलो ठीक। 1 मिनट, लेट से 1 सेकंड, अभी के लिए अज्यूम कर लो कि सब में ऊंची बोली हमारे गणेश की है। गणेश हैज ऑलरेडी सोल्ड हिज बाइक टू विष्णु, सो ही वांटेड बाइक। सबसे बड़ी बोली, ऊंची बोली जो है 3 लाख रुपए की, वो गणेश ने दी है। 3 लाख की। सुनो मेरी बात। यस, अब मैं ऑक्शनर हूं, तो मैंने आवाज दी 3 लाख के आगे कोई है क्या? कोई जवाब ही नहीं दे रहा। 3 लाख के आगे कोई है क्या? कोई जवाब ही नहीं दे रहा। तो फिर मैंने काउंट करूंगा, 3 लाख 1, 3 लाख 2 और 3 लाख 3। लेट्स से ये वो हैमर रहेगा जो ऑक्शन में यूज करता है, और जैसे ही फॉल ऑफ हैमर होता है, यस 1 सेकंड मेरी बात समझिए,
जैसे ही फॉल ऑफ हैमर होता है, द बाइक इज ऑटोमेटिकली सोल्ड टू गणेश। नाउ माय डियर फ्रेंड्स अंडरस्टैंड, जो ये बोली लगा रहे थे, ये जो बिड कर रहे थे, व्हाट इज दिस? दिस इज अ ऑफर। इन्होंने एड देखकर यहां पर आए हैं, ये लोग इनविटेशन टू ऑफर एक्सेप्ट किया है। इनविटेशन टू ऑफर एक्सेप्ट किया है, इसका मतलब ऑफर एक्सेप्ट किया क्या? इनविटेशन टू ऑफर अलग होता है। इनविटेशन ऑफर एक्सेप्ट करने के बाद आपको फिर से ऑफर करना पड़ता है। तो आप लोग ऑफर कैसे कर रहे हो? बोली लगाकर, बिड देकर, राइट? आप लोग ऑफर लगा रहे हो, हर कोई अपने अपने ऑफर कर रहा है, और सभी लोग ऑफर लगाने के बाद जिसका ऑफर मुझे पसंद आया, जिसका ऑफर मुझे एक्सेप्ट करना था, जो गणेश का हाईएस्ट बोली थी, 1 2 3 के मैंने काउंटिंग की, किसी ने उससे ऊंची बोली नहीं की, मैंने जैसे ही फॉल ऑफ हैमर कर दिया, एज सुन एज देयर इज फॉल ऑफ हैमर, that fall of hammer denotes the acceptance of the offer which is made by Ganesh, that is price of 3 lakh rupees. Now the offer of 3 lakh is accepted by me and that bike is sold to Ganesh and there is an agreement between me and Ganesh. गणेश को बाइक बिक गई, विष्णु को गुस्सा आ रहा, विष्णु यहां बैठ के झगड़े करने लगा, आपसे कैसे बिकता तुम्हें इतना बाइक? हाँ नहीं समझे, उसे नहीं बेचना, बाइक मुझे बेचनी पड़ेगी। मैंने बोला बेटा तुमने 2 लाख की बोली लगाई, उसने 3 लाख की बोली लगाई है। हाँ तो तुमने न्यूज में ऐड दिया है बाइक बेचना है, तुम्हारा ऑफर देख के मैं यहां आया हूं, 2 लाख रुपए नकदी लेके, नकदी नोटा नोटा नोटा, कोरा कोरा 2000 का बंडल है, मैंने भी ऑफर किया है ना, फिर मैंने भी बोली लगाई, लेकिन तुम गणेश को गाड़ी दे रहे, ऐसे कैसे? तुम्हारा न्यूज का ऐड है, मैंने ये देख के आया हूं, मैं नोट लेकर आया हूं, मैंने एक्सेप्ट कर लिया, तुमने ऑफर कर दिया, अपन दोनों के बीच में एग्रीमेंट होगा, गाड़ी मुझे दो बुलाना तो दो, अभी कभी दो। तो मैंने कहा भाई साहब थोड़ा रुको, तुम जो एडवर्टाइजमेंट की बात कर रहे हो वो एक इनविटेशन टू ऑफर है, आप जो बोली लगा रहे हो वो एक्सेप्टेंस नहीं है, वो क्या है? ऑफर। और जो मैं फॉल ऑफ हैमर दे रहा हूं वो एक्सेप्टेंस है, जो किसके ऑफर पे आया? गणेश के। आपने जो एक्सेप्ट किया है भाई साहब वो इनविटेशन टू ऑफर का एक्सेप्टेंस है, ऑफर का एक्सेप्टेंस नहीं। अरे गेट माय पॉइंट, समझ में आया कंसेप्ट पूरा एकदम अच्छे से? किसी कुछ पूछना है? सो ऑफर इज डिफरेंट फ्रॉम स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन। इंटेंशन यानी गणेश इंटेंड्स टू सेल हिज बाइक टू विष्णु, उसका इंटेंशन है बेचने का, दैट मीन्स इज ही विलिंग? नो। और ही इज डिजायरिंग, डिजायर का होना और विलिंगनेस के होने में बहुत फर्क होता है। डिफरेंट फ्रॉम इन्विटेशन टू ऑफर। नाउ वी हैव अंडरस्टूड व्हाट इज इन्विटेशन टू ऑफर, एंड ऑफर इज ऑल्सो अगेन डिफरेंट फ्रॉम स्टेटमेंट। लेट्स से भाले हैज मेड अ स्टेटमेंट कि उसे कटरीना बहुत अच्छी लगती है, कटरीना बहुत अच्छी लगती है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो कटरीना से शादी करना चाहता है। सो स्टेटमेंट कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज ऑफर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब इन्विटेशन टू ऑफर के ऊपर केस लॉ है, इन्विटेशन टू ऑफर के ऊपर केस लॉ है। दिस केस लॉ इज ऑफ हैरवे वर्सेस फेसी। हैरवे वर्सेस फेसी का एक केस लॉ है। अब इस केस लॉ के अंदर अगर आप पढ़ो तो सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी। एक और है केस लॉ हैरिस वर्सेस निक्सन, जहां पर ऑक्शन से रिलेटेड केस लॉ है। ऑक्शन क्या होता है या फिर इन्विटेशन टू ऑफर क्या होता है, यह आप समझ चुके हो। वापस एक केस लॉ डिस्कस करने की जरूरत है क्या? वापस एक केस लॉ डिस्कस करने की जरूरत है क्या? नहीं। आप केस लॉ पढ़िए, पढ़ने के बाद अगर कुछ डाउट अगर उसमें आते हैं तो मुझे पूछ लीजिए। इन्विटेशन टू ऑफर का एक्सेप्टेंस ये एक अग्रीमेंट नहीं होता। ये कंसेप्ट तो दिमाग में बैठ गई ना, क्योंकि जो कोई भी व्यक्ति इन्विटेशन टू ऑफर एक्सेप्ट करता है उसे जाकर ऑफर करना पड़ता है, फिर वो व्यक्ति एक्सेप्टेंस देगा, फिर जाकर एग्रीमेंट होगा। यानी इशिता ने जो देखा फ्लैट 50%, इट इज अ इन्विटेशन टू ऑफर। अंदर जाके उसे चॉइस करने पड़ेगी उसे कौन सा पेयर लेना है, उसके बाद वो स्टोर कीपर एक्सेप्टेंस देगा, फिर जाकर दोनों के बीच में अग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इशिता जाकर नहीं बोल सकती कि मैं कोर्ट में तुम्हारे ऊपर केस करूंगी, बाहर लिखा है 50%, वो ऑफर मैंने एक्सेप्ट कर लिया, अपन दोनों के बीच में अग्रीमेंट हो गया, आप तो मना कर रहे हो डिस्काउंट देने के लिए, डिस्काउंट देने के लिए, तो ये बात नहीं जमी, ये बात नहीं जमी। लेकिन कोर्ट ने क्या कहा, जो फ्लैट 50% का जो एड है दैट इज नॉट ऑफर, दैट इज अ इन्विटेशन टू ऑफर, राइट?
सी ऑफर और इनविटेशन ऑफर के बीच का डिफरेंस है, ये भी कोई डिफिकल्ट बात नहीं है, आप इस पॉइंट को भी कर लेंगे, राइट. सो दिस इज ऑल वी हैव ऑन द डिस्कशन ऑन इनविटेशन टू ऑफर. यस और नो? आर वी क्लियर? आर वी क्लियर? So these are the different points which we need to ensure that should be present to form a valid offer. Valid offer के लिए ये सारे points का मौजूद होना जरूरी है. That's all for today for CA Foundation Law. We'll continue with the next concept tomorrow. Okay.